अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ कतर्स हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एज यू ऑल्सो कि हम यहाँ पर कतार में आ चुके हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग में ही लैंड किया वाया विद कतार 777 फ्लाइट का एक्सपीरियंस आपने पार्ट 1 में देखा, सो ये पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 है, इसको हम ये होने वाला है, इसको हम पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। जितने गेट्स है, जितने रेस्टोरेंट्स है, जो कि कतर के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारे अट्रैक्शंस है, एप्रोन कहाँ से दिखता है, लॉन्जेस का क्या सिस्टम है। लॉन्च का भी एक अलग वीडियो बनेगा। ऑरिक्स लाउंज है तो कतर एयरवेज का बहुत ही फेमस लाउंज है, उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लाउंज के अंदर से पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ए टू जेड सारी चीजें दिखाऊंगा। सो पहले हम एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं जस्ट ऑरिक्स लाउंज के नीचे खड़ा हूँ, ऊपर ऑरिक्स होटल भी है। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो बेसिकली ये पूरा एयरपोर्ट है, गेट ए बी सी का सिस्टम है। और अभी हमें ये टेडी बेयर है जो मैं आपको बताता हूँ। ये टेडी बेयर के पास ही हम, ये कतर एयरपोर्ट का बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। बिकॉज मैं लॉन्च में था, मैंने लंच किया लॉन्च में, लॉन्च से बाहर आया। हम पहले एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लॉन्च भी पूरा दिखाता हूँ। यस गाइस, सबसे पहले तो चलते हैं कतर ड्यूटी फ्री में, देखते हैं ड्यूटी फ्री का क्या सिस्टम है। वहीं से स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करना। लेट्स गो। So this is how the entry part of the Qatar's duty free is looking. To be honest guys, this looks fabulous. So this duty free is located just across from the Oryx Lounge, like it is located nearby the gate A. And if you come straight from the gate A, you will directly reach the duty free part. So as you all know that I just arrived from Medina Al Munawwara in the morning, and I just took a short nap. Our flight landed at 7 in the morning, and I took a nap till 11 in the afternoon. So after taking the nap, I refreshed myself just in the Oryx Lounge, and the vlog of Oryx Lounge is also coming soon. So yes guys, and then later I just came into the duty free. And yes guys, today we are flying with Qatar's A350 to Mumbai. I hope that Qatar Airways won't change our A350 to Boeing 777. And as you all know that Hamad International Airport is very impressive and have vast varieties of restaurants, and literally offers a splendid view of Tarmac in Apron. So yes, and this is the same area guys where I came after transiting. तो अभी मैं हूँ फूड पार्क दोहा के बाहर, जो कि एक बढ़िया फूड कोर्ट मेरे को दिखा है। मेरे पास तो लॉन्च का एक्सेस है, तो मैं तो यहाँ खाने से रहा। मैं आपको अभी, आप पता है मैंने जैसे लॉन्च बताता हूँ, मैं आया हूँ इधर फूड कोर्ट में, मैं आपको बताता हूँ पूरा। So guys, this is the food park in Doha, and while entering you can see a Costa coffee shop located in here, and surprisingly you can also see a dosa factory where you can get the South Indian dishes and a variety of fresh juices and even a sushi. And the main part about this food court is the fantastic view of Apron. Wait, let me show it to you all. तो यहीं पे मैं खड़ा हूँ, ऊपर स्काई ट्रेन भी नियर द गेट C1 to C63। और यहाँ पर मुझे डेस्क मिला, यहाँ पर आप सारी आपकी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसा इसको यूज करना है। So guys, this is the one of the best airport digital maps I have seen. As you can see, I'm just standing near the main area just behind the teddy bear, and there are different shops, restaurants, varieties of prayer room. See, there's a whole list of prayer room, like on which gate where is the prayer room, and there's a whole departure and transfer information available. Let me put my flight number. Oh sorry guys, I have added my wrong flight number. My flight number is QR556 to Mumbai, and boom, the information is here, the 8:45 departure with Qatar Airways. So yeah, the gate is not open now, and the gate has not been announced now, so it won't show it here. If it is announced, it will show it here. So far so good. अभी मैं जा रहा हूँ और ऊपर गेट सी पे। हम आपको, आप लोगों को स्काई ट्रेन दिखाने, देखते हैं क्या सीन है, फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे। पहले ऊपर चलते हैं, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, फिर नमाज भी पढ़नी है जोहर की, तब मैं आपको प्रेयर रूम भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आ गए हैं अपने सी वाले गेट पे। ये स्काई ट्रेन का है पूरा, और स्काई ट्रेन आपका अपने गेट पे लेके चले जाएगी। मेरे पीछे एक स्काई ट्रेन आ रही है, एज यू कैन सी। ये सारा बढ़िया सिस्टम लगता है मुझे। फटाफट गेट पे पहुंचा दो, बूम, द स्काई ट्रेन इज हियर, नाइस। और ये पूरे पीछे टर्मिनल है अपने, आप देख सकते हैं।
So here is the screen showing the all departure information. Let me show it to you all. As you all can see, to Qatar Airways or Indigo Airlines to Bahrain and Mumbai. The last time it is showing is of 8:10 to Qatar Airways to Bangkok and Peshawar. So yet it will show for Mumbai now. I think it will take a few seconds. Oh, it is not showing. It is showing the Arabia to Sharjah. I think we have to wait for a while for the gate to open for us. This is the Apple shop. Wow, this looks pretty good. और यहाँ पर मैंने iPhone 15 का प्राइस देखा, which is let me show 256 GB है 3619, which is approximately 85,000 Indian rupees. और मैं जो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, this is the same iPhone 15. So yes. So अभी अपने खड़े हैं गेट बी के पास और यहाँ पर ये चॉकलेट की शॉप है, स्विस चॉकलेट्स। ऐसा सुना है, मैंने कभी खाया नहीं है कि इसकी चॉकलेट्स जो है ये बहुत बढ़िया आती है। सो अगर आप आ रहे हो कतर एयरवेज से फ्लाई कर रहे हो या यही टर्मिनल से, बाकी एयरलाइन ये टर्मिनल पर है, सो डू चेक एंड श्योर टू कम हियर। और यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी है, और बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव। आई वोंट रिकमेंड कि आप एयरपोर्ट से कराइएगा। आप आपकी होम कंट्री या डेस्टिनेशन जहाँ पे भी जा रही है, जहाँ से आ रहे वहीं से करवा के लाओ तो बेटर है। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बी लिखा हुआ है, वहाँ पर ए है, और ये टेडी बियर है पीछे, और यहाँ पर CDE है। सो यस गाइस, जो मेरा माइक था वो मैंने माइक को चार्जिंग पर रखा है, इसलिए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। फिर माइक मैंने मॉस्क में चार्जिंग में रखा है। माइक की बैटरी खत्म हो गई बिकॉज मैं कल रात से व्लॉग शूट करते आ रहा हूँ, इसीलिए माइक बिना बोला। और यहाँ पर बहुत ही क्वाइट है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आप लोग को आवाज़ आ जाएगी। चलो चलते हैं प्रेयर रूम में। अभी मैं हूँ बी सेक्शन में, A B C बी पर है, हमने ADE देखा। चलो चलते हैं प्रेयर रूम पर। यहाँ पर आप सामने देखेंगे गेट B2। बी वाले सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पर वुमेंस और मैन दोनों का प्रेयर रूम है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो मेंस का है, और ये रहा ये वुमेंस का। और यहाँ पर सारे डिपार्चर गेट्स भी लगे हुए। हमारा है वो है 8:45 का, तो अभी लास्ट 8:40 का ही दिखा रहा है। हियर इज़ अहमदाबाद गुजरात 8:45 का है, तो आई थिंक अभी थोड़ी और देर में यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है। So yes, let's head to the mosque now. Let's go inside the mosque. प्रेयर रूम बताया आपको। अभी हम खड़े हैं गेट नंबर बी के पास, वहीं प्रेयर रूम से हम आगे आ गए। हमने असर की भी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर लिए। आगे चलते हैं, दूसरी साइड वाली चलते हैं एयरपोर्ट पे, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये पूरा एक्सप्लोर करके ट्रांजिट का मैं आपको सारा बताता हूँ। सो अभी जैसे मैं आया मुंबई से, तो मुंबई के साथ आप राइट साइड पे जाएंगे तो इमिग्रेशन सारे काउंटर है। लेफ्ट साइड पे आएंगे, वो आपको वहाँ पर स्टाफ खड़ा रहेगा बताने के लिए। वहाँ पर सारे ट्रांसफर डेस्क के 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। बोर्डिंग पास बताइए और आपका इंटरनेशनल ट्रांसफर डायरेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांजिट का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप दोहा हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मतलब 12 घंटे का ट्रांजिट है, तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई 12 घंटे कैसे निकलेंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके 12 घंटे बहुत इजीली निकल जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपको बहुत कुछ बताया। और एक होटल भी है, लाउंज भी है। लाउंज भी हम दूसरे ब्लॉग में पूरा कवर करेंगे। सो यस, अगर मैं तो कहता हूँ 18 या 20 आवर का भी ले ओवर है मैक्सिमम, लॉन्ग कनेक्शन है तो भी हो जाएगा। और अगर आपका रैपिड कनेक्शन भी, आपकी फ्लाइट और 2 फ्लाइट चेंज कर रहे हो, बीच में हाफ एन आवर का भी टाइम है, तो भी आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव, वो आपको एयरक्राफ्ट के बीच में शिफ्ट और इंटरनेशनल ट्रांसफर कोई 2 सेकंड के अंदर करा देंगे। सो यस गाइस, सो रहा ये मेन पार्ट है सबसे। इसको तो ये रहा टेडी बियर,
और वहां पर आप सामने देख रहे हैं, मैं और जूम करता हूँ, वो अल महा लॉन्च है। CDE के लिए आप ऊपर जाते हो, ऊपर अल महा लॉन्च है। और ऑरिक्स एयरपोर्ट एंड ऑरिक्स होटल यहाँ पर है। लुई विटॉन आप देख रहे हैं, इसकी राइट साइड में आपको यहाँ से अंदर जाना है और यहाँ से ऊपर जाना है। पूरा ऑरिक्स का लॉन्च जो ऊपर है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये ऑरिक्स का लॉन्च है। जिसको भी लॉन्च के लिए आना है वो यहाँ पर आ सकता है। इसका एक अलग ही ब्लॉग है, वो आपको भी देखने को मिलेगा। गाइस A24 अपना गेट अनाउंस हो गया है, QR 556 जो मुंबई। मैं सोचा एक बार गेट देख के आता हूँ, फिर वापस चले जाऊंगा, क्योंकि लाइक इंसान का होता है, इंसान एक बार गेट देख लेगा शांति हो जाएगी। भले ही वो गेट से फ्लाइट जाने वाली, लेकिन अपना तो देख कर आते हैं गेट क्या सीन है। अभी फ्लाइट को है 3-4 घंटे है, लेकिन गेट देख कर आते हैं कहाँ पर है। आपको बोला था A23 है, अब मैं A23 पे पहुंचा तो A23 तो था ही नहीं। शायद मेरी देखने में मिस्टेक हो गई है या पता नहीं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। गेट था C23, मैं तो ए वाले सेक्शन पे पहुंच गया। आई एम श्योर कि मैंने देखा था मुंबई के लिए ए था, गेट ए वाले एरिया में था, पता नहीं उसको सी कर दिया है, मेरी देखने में मिस्टेक हो गई, आई डोंट नो। सो अभी मैं ए में हूँ, बी सी में वापस जाऊंगा, डी को भी पूरा घूम के वापस जाना पड़ेगा। मैं तो एयरपोर्ट की वेस्ट साइड में आ गया, मतलब ये राइट वाली साइड में, और पूरा घूम के वापस सी पे जा रहा हूँ। सो यस गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ लिया, गेट भी देख लिया, सब कंफर्मेशन हो गया है। अब ये जो पूरा आपको एयरपोर्ट दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अभी व्लॉग को एंड करते हैं और अब फोर्थ पार्ट को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, विच विल बी फ्रॉम दोहा टू मुंबई विद कतर एयरवेज E350। सो यस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पार्ट गाइस। आई होप कि कतर एयरवेज वाली सीरीज आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Never let you go, never let me down.